Welcome everyone. This video is a quiz consisting of 10 questions on the topic types of phrases with their answers and explanation. In the last video, we have already learned about the 5 types of phrases, namely noun phrase, adjective phrase, adverb phrase and prepositional phrase. So this quiz is based on the last video. So let's start the quiz. Identify the type of phrase written in red in the following sentences. The first question is, the team celebrated after the game. Now identify this phrase after the game. Your time starts now. So the correct answer is prepositional phrase. After the game is a prepositional phrase क्योंकि after एक preposition है और game एक noun है और ये जो phrase है वो preposition से start होके noun पर end हो रहा है. That is why it is a prepositional phrase. And also this phrase after the game is acting as an adverb in this sentence because it is modifying the verb of this sentence. Verb है celebrated, तो verb को modify कर रहे हैं ये group of words after the game. Celebration कब हुआ? After the game. So this prepositional phrase is acting as an adverb in this sentence because it is modifying the verb of this sentence. Question number 2. He was wearing a bright red jacket. वो एक bright red jacket पहने हुए था. Now identify this type of phrase, a bright red jacket. Your time starts now. So the correct answer is noun phrase. A bright red jacket is acting as a noun in this sentence क्योंकि jacket एक noun है और उसके पहले ये 3 words आ रहे हैं जो कि इस jacket को modify कर रहे हैं, jacket की quality बता रहे हैं कि jacket कैसी है, bright red color की एक jacket है. तो A determiner हो गया. इन बाकी 2 words bright and red, these are adjectives जो कि jacket को ही modify कर रहे हैं. In this sentence, a bright red jacket, this noun phrase is acting here as an object of the sentence. He was wearing what? A bright red jacket. तो ये object हो गया. तो noun phrase can act as subject, object और complement. Question number 3. She danced with grace. उसने डांस किया था grace के साथ. So identify this type of phrase. Your time starts now. So the correct answer is adverb phrase. With grace is acting as an adverb in this sentence जो कि danced को यानी कि verb को modify कर रहा है कि उसने डांस किया था. कैसे डांस किया था? With grace, grace के साथ डांस किया था. तो these 2 words यानी कि ये जो adverb phrase है ये डांस को यानी कि verb को modify कर रहे हैं कि verb के बारे में बता रहे हैं कि action कैसे हुआ, grace के साथ हुआ. तो this phrase is acting as an adverb, so it is an adverb phrase. Question number 4. They will be arriving at noon. Identify this type of phrase, will be arriving. Your time starts now. So the correct answer is verb phrase. Will be arriving is a verb phrase क्योंकि ये 3 words as a single unit work कर रहे हैं और action को denote कर रहे हैं कि action क्या हो रहा है, will be arriving. जहाँ पे will एक auxiliary verb है, be भी auxiliary verb है और arriving main verb है. तो ये 3 verbs एज ए सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे हैं, एक्शन को डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्शन क्या हो रहा है, विल बी अराइविंग. सो दिस फ्रेज इज एक्टिंग एज अ वर्ब, सो इट इज अ वर्ब फ्रेज. क्वेश्चन नंबर 5. आई मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज. मैं एक लड़की से मिला था विथ ब्लू आईज जिसकी ब्लू आंखें थी. आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ फ्रेज.
with blue eyes. Your time starts now. So the correct answer is adjective phrase. These three words with blue eyes is modifying the word girl, यानी कि girl एक noun है जिसको ये modify कर रहे हैं, girl के बारे में बता रहे हैं, girl की quality बता रहे हैं कि girl कैसी थी, with blue eyes, blue आँखों वाली girl थी। तो ये adjective phrase हो गया क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं girl की, noun की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट स्लेप्ट अंडर द बेड। कैट बेड के नीचे सो गई थी। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज अंडर द बेड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is prepositional phrase. Under the bed is a prepositional phrase. प्रिपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, अंडर एक प्रिपोजिशन है, बेड एक नाउन है और प्रिपोजिशन से स्टार्ट होके नाउन पे एंड हो रहा है ये फ्रेज, दैट इज व्हाई इट इज अ प्रिपोजिशनल फ्रेज। ऑल्सो दिस प्रिपोजिशनल फ्रेज अंडर द बेड इज एक्टिंग हेयर एज एन एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे ये स्लैप्ड को यानी कि जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक्शन कहाँ हुआ, अंडर द बेड, कैट सो गई थी बेड के नीचे। तो ये जो वर्ड्स हैं अंडर द बेड ये प्रिपोजिशनल फ्रेज हैं एंड ऑल्सो दिस फ्रेज इज मॉडिफाइंग द वर्ब स्लेप्ट इन दिस सेंटेंस, सो इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज रीडिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी पढ़ रही है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज इज रीडिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is verb phrase. Is reading is denoting action in this sentence कि action क्या हो रहा है, is reading. So the correct answer is verb phrase. Is reading is एक auxiliary verb है, reading एक main verb है, दोनों combine होके as a single unit काम कर रहे हैं action को denote करने के लिए कि action क्या हो रहा है, is reading, पढ़ रही है। तो ये वर्ब का काम कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज अ वर्ब फ्रेज। 8th क्वेश्चन, दे सैंग विद एंथुजियाज्म, उन्होंने गाना गाया था एंथुजियाज्म के साथ। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज विद एंथुजियाज्म। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is adverb phrase. With enthusiasm एक adverb phrase है क्योंकि ये modify कर रहे हैं इसके पहले आए हुए verb को। verb क्या है, sang। action क्या हुआ था, गाना गाया था। तो कैसे गाया था गाना, एंथुजियाज्म के साथ गाया था। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुआ, विद एंथुजियाज्म। तो विद एंथुजियाज्म हो गया एडवर्ब फ्रेज बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब इन दिस सेंटेंस, इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। 9th क्वेश्चन, द ओल्ड रस्टी की वॉज हिडन अंडर द मैट। ओल्ड रस्टी की मैट के नीचे छुपी हुई थी। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज द ओल्ड रस्टी की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is noun phrase. The old rusty key is a noun phrase because it is acting as a noun in this sentence. Key एक noun है, ओल्ड एंड रस्टी आर एडजेक्टिव्स जो कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रही हैं कि की कैसी थी, ओल्ड और रस्टी थी। और द एक आर्टिकल है जो बता रहा है कि कौन सी की थी, स्पेसिफिक की बात हो रही है। तो ये एक आर्टिकल हो गया जो कि की के लिए ही यूज़ किया गया है। सो द ओल्ड रस्टी की इज़ अ नाउन फ्रेज जहाँ पे द एक डिटर्मिनर है जो यहाँ पे आर्टिकल है, प्लस ओल्ड एंड रस्टी आर द एडजेक्टिव्स जो कि की को यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी कि की से पहले आए हुए ये 3 वर्ड्स की को यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ नाउन फ्रेज।
Also, this noun phrase in this sentence is acting as a subject. The old rusty key के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है, कुछ कहा जाता है, वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का. तो दिस नाउन फ्रेज इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क. उसने एक टर्बन पहनी हुई थी. टर्बन मतलब पगड़ी. पगड़ी पहनी हुई थी जो कि सिल्क की बनी हुई थी. नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज मेड ऑफ सिल्क इन दिस सेंटेंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव फ्रेज मेड ऑफ सिल्क. ये जो फ्रेज है ये इसके पहले आए हुए नाउन टर्बन को मॉडिफाई कर रहे हैं. टर्बन के बारे में बता रहे हैं कि टर्बन कैसी है, मेड ऑफ सिल्क, सिल्क की बनी हुई है. तो टर्बन की विशेषता बता रहे हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. यहाँ पे इस नाउन टर्बन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है ये फ्रेज. सो इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. लास्ट क्वेश्चन, द एंग्री डॉग वॉज बार्किंग लाउडली. एंग्री डॉग बहुत ज़ोर से बार्क कर रहा था. अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज द एंग्री डॉग. In this phrase, dog is a noun, angry is an adjective, and the is a determinant. So identify this type of phrase and answer it yourself in the comment section. I hope this video has helped you. Thanks for watching.